Good morning, students. This is Monica Yadav, your biology teacher. Today we will do your chapter number 2, unit of life cell. Why I am going to do it again? Because we have done our last class with NCERT, but you have S Chand also with you. So I want to revise that part of S Chand also, so that you will understood well. So what is a living being made up of? We have already done in our last class that living organisms are made up of cells. The cell is the basic structural and functional unit of living organisms. In this lecture we will do it quite fast so that we will be able to revise our last lecture. So then what is unicellular organisms, which are made up of one cell? Multicellular organisms, which are made up of many cells. Then the differences: unicellular are represented by single cell and activities are performed by single cell, no division of labor, single cell reproduces and lifespan is very short. In multicellular, large number of cells, few activities are performed, division of labor within the cell, only some of the cells like germ cells part in reproduction. Each and every cell does not part in reproduction. Then lifespan of an individual is long. Then we have already discussed about discovery of cell. Who did it? रॉबर्ट हुक इन 1665. कैसे किया था? उसने अपना हैंडमेड जो माइक्रोस्कोप था उसका यूज़ किया था, जो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, जिसमें फ्लेम है, रिजर्वोयर, कंडेंसर, फोकस स्क्रू, ऑब्जेक्ट, इस तरह का उसका माइक्रोस्कोप था, जिसमें उसे इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. Okay. Then Anton von Leeuwenhoek was the first who discovered a live cell. Then in last class we have already talked about the light microscope. Then this is an electron microscope which can detect or which can be used to see the cells which are about nanometers, 0.1 nanometers. But in simple microscopes we are not able to see the cells which are less than 100 micrometers. Then prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cells आर प्रिमिटिव इन देयर स्ट्रक्चर, मीन्स वो बहुत पहले बनी थी. यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? जिनमें आपका क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है. जैसे कि हमारे यहाँ पे देखिए आप, जो हमारी ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे नेक्ड पड़ा हुआ है. यहाँ पे देखिए आप, ये यूकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें डीएनए इस तरीके से पड़ा हुआ है जिसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? छोटी होती हैं. जबकि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? साइज में बड़ी होती हैं. इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. It contains single chromosome. It contains more than one chromosome. Then nucleolus is absent. Nucleolus is present. Membrane bound cell organelles are absent and membrane bound cell organelles are present. जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये नहीं होते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, दीज आर प्रेजेंट. जैसे कि अब हमारे पास ये दो सेल्स हैं, तो आप देखिए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेलम है. देन इट हैज़ पिलाई लाइक स्ट्रक्चर. दीज स्ट्रक्चर्स, दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल. और यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल है जो नेक्ड है. इसके चारों तरफ क्या नहीं है? मेम्ब्रेन नहीं है. देन
it has a plasma membrane outside the cell. Then कैप्सूल, कैप्सूल क्या होता है, लेयर होती है जो हार्ड लेयर भी हो सकती है और स्लाइम लेयर भी हो सकती है. मीन्स इट प्रोटेक्ट्स द प्रोकैरियोटिक सेल्स और बैक्टीरिया फ्रॉम हार्श कंडीशंस. हार्श कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट करते हैं. देन दे हैव अ सेल वॉल. सेल वॉल इज फाउंड मेनली इन प्लांट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. क्यों? Because it provides rigidity to the cell and it also protects them from harsh conditions. उनको harsh condition से भी protect करता है. Then if we see a eukaryotic cell that has chromatin, nuclear material, around which you can see that there is a membrane, nuclear membrane, which has the small small pores. इसमें देखो ये छोटे छोटे पोर्स हैं, ये छोटे छोटे पोर्स हैं इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके. देन इट हैज़ some other organelles such as endoplasmic reticulum here. Then Golgi bodies, these are Golgi bodies, these are Golgi bodies. Then this is ER, lysosomes, Golgi bodies here. Nucleolus is the region inside the nucleus. Mitochondria, centrioles, vesicles and cytosol. These are the part of a eukaryotic cell. So you have to make the diagram of prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. अब न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस होता है? न्यूक्लियोइड इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स और ये स्मॉलर इन साइज होता है. न्यूक्लियस इज लार्जर इन साइज. और इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के अराउंड ये मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस में. लेकिन न्यूक्लियोइड में जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है, मतलब उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है. न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस रीजन होता है जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन न्यूक्लियोइड. आप जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि जो न्यूक्लियोइड होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है उसमें सिर्फ एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है. व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. और डीएनए क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि विच टाइप ऑफ हेयर that person will have or which type of body design will have the organism. DNA is associated with histone proteins जिस क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है. Then labor of division of labor, we know that कि जो सेल्स होती हैं उनमें भी अलग अलग फंक्शन करते हैं अलग अलग ऑर्गेनल्स. ऐसे ही हमारी सेल्स क्या है, कार्डिक मसल्स अलग काम करती हैं, हमारी हार्ट मसल्स अलग काम करती है, हमारी नर्व सेल्स अलग काम करती है. तो सब का फंक्शन डिवाइडेड होता है हमारी बॉडी में. सो डिफरेंस क्या होता है ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनल्स में? ऑर्गन्स तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, ऑर्गेनल्स पार्ट होते हैं सेल के. They are large size, they are very small size, they are internal, they can be external. जैसे हमारे हाथ हमें दिखते हैं लेकिन हमें सेल के अंदर के तो ऑर्गेनल्स नहीं दिखते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया हमें नहीं दिखाई देता, हमें सेल ही इवन दिखाई नहीं देती, इतनी स्मॉल होती है. सेल का शेप वेरी करता है. आप देखते हैं कि देखो यहाँ पे इरेगुलर शेप है अमीबा की. ठीक है. अगर हम एग सेल देखते हैं यहाँ पे तो ये देखिए ओवल शेप्ड है.
Then fibroblast have different shape, liver cells have different shape, nerve cells have different shape. तो shape भी vary करता है according to cell, कि जिस तरीके से वो function करती है उसी तरीके की उसकी cell होती है, shape होती है. Size भी vary करता है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर इन हाइट, सिंगल मेरीन एसिटिबुलेरिया. तो अगर आप देखते हैं कि साइज 0.2 to 5 माइक्रोमीटर होता है किसका, बैक्टीरियल सेल का. एग ऑस्ट्रिच का 18 सेंटीमीटर के अराउंड होता है. तो जो साइज है वो भी वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज सेल का. स्ट्रक्चर ऑफ सेल वी हैव ऑलरेडी डन, कि दैट की स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है. मेनली हम देखते हैं जब हम सेल बनाते हैं तो बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और ये साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है सेल के अंदर. इसी में ही सारे फिर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडीज, वेसिकल्स, वैक्यूल्स. देयर आर सो मेनी cell organelles present inside the cytoplasm. So main two compartments are nucleus and cytoplasm. And these are, now I will show you an animated video of cell. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. तो आप यहाँ पर देखिए क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है जो उसको अलग करता है एनवायरनमेंट से. फिर इसके अंदर एक लिक्विड है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज साइटोप्लाज्म. और ये यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. और इसके अंदर अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जो क्या है आपका डीएनए. ऐसे There are two broad categories of cells. कौन The कौन first सी दो category कैटेगरीज is होती हैं, eukaryotic यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल. cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. तो यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ मिलती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बेसिकली. एंड जो बैक्टीरिया है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus can... You are able to see here the pores. देखिए यहाँ ये छोटे छोटे आपको pores दिखाई देते हैं. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फिर जेनेटिक मटेरियल है. Contains DNA or genetic material. अब हम कहाँ
कहाँ चले गए हैं? DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin. Now we are inside the nucleus. अब आप कहाँ पहुँच गए हैं? न्यूक्लियस के अंदर. वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? जेनेटिक मटेरियल. वो क्या है? यहाँ पर DNA is the tangled, spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ऐसे थ्रेड लाइक मटेरियल है वो आपका किस में चेंज हो गया है? क्रोमोसोम्स में. जब सेल डिवाइड होती है तब. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. अब ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पार्ट, this one, this is ER, endoplasmic reticulum. Okay, and these yellow beads, these yellow beads are ribosomes. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER. Rough एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? RER. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? SCR. जिस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिसके साथ अटैच होते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. So next class we will continue with this video again. So today I've taught you what type of structure a cell have. Thank you so much for listening me, and please learn whatever we have done in our class.